morning dear students. Dear students, in the previous class we have discussed about the enzymes, that enzymes are such organic substances that will be responsible for increasing the rate of the reaction. Therefore, all catalyzed reactions occur at a faster rate compared to the uncatalyzed reaction. We have studied this by taking the example of carbonic anhydrase, that about 200 molecules of the H2CO3, that is carbonic acid, were produced in a duration of 1 hour if there is absence of enzyme. But in presence of enzyme, 6 lakh molecules of carbonic acid formed just in a duration of 1 second. You can imagine that how fast the rate of the reaction is going to be. Another thing we have discussed was that enzymes are three-dimensional structures of the proteins itself, tertiary structures of proteins. Therefore, every enzyme is going to have an active site to which the substrate is going to attach. So we have learned about the concept that each enzyme has an active site for attachment, of the substrate. तो सबस्ट्रेट कहां पे अटैच होने वाला है? सबस्ट्रेट अटैच होने वाला है टू एन एक्टिव साइट, और ये एक्टिव साइट किस पे होती है? एंजाइम्स पे होती है. एक्टिव साइट आर स्मॉल crevices or pockets where the substrate is going to attach. So this substrate, what is a substrate? The substrate is a chemical that is going to form the product at end of the reaction. मतलब रिएक्शन खत्म होने पे जो सब्सटेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं. या तो आप ऐसा कह सकते हो, the substance on which the enzyme is going to act is known as substrate, or you can say that a substance, a chemical which is going to form the product at the end of the reaction. रिएक्शन खत्म होने पर जो सब्सटेंस में से प्रोडक्ट बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है जिसे हम हमारी बॉडी में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन. ऑल दीज रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग in our body, for example breakdown of starch to glucose is which type of reaction? A metabolic reaction. तो स्टार्च से ग्लूकोज ब्रेक करना भी कोई एंजाइम का ही रोल है. तो यहाँ पे स्टार्च क्या है? Starch is the substrate. It is going to be broken down to glucose, which is the product, and the enzyme working is the amylase. तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हर एक जो रिएक्शन है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, उसे हम और क्या कह सकते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन. अब ये रिएक्शन होने में बनने क्या वाला है? मतलब सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, ये हमें पता है. Right, so it is depicted, S is depicted as the substrate, P is for the product. So S to P change is going to occur. But the substrate has to attach to the active site of the enzyme to form an enzyme substrate complex. Is it immediately going to change to product? No. When the enzyme combines with the substrate, it is going to form an enzyme substrate complex. And this enzyme substrate complex is also
स्टेट कहेंगे। ट्रांजिशनल मतलब जो अभी ट्रांजिट मतलब जो अभी आगे चेंज होने वाला है। जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच होता है तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है और इस इंटरमीडिएट स्टेज को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल स्टेट कहा जाता है। यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ट्रांजिशनल स्टेट इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक बीच में बनने वाला अनस्टेबल स्टेज है। इसके आगे और पीछे जितने भी स्टेजेस होंगे, राइट, इमीडिएटली क्या होने वाला है? यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स बनने वाले हैं और कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होने वाले हैं, राइट। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड breakdown of older bonds। मतलब ES कॉम्प्लेक्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होने वाले हैं और सबस्ट्रेट की जगह पे प्रोडक्ट बनके EP कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स भी ट्रांजिएंट है और अनस्टेबल है क्योंकि प्रोडक्ट जो है नाउ इट कैन no longer attach to the active site of the enzyme. Therefore, the product has to immediately be left out and this will result into enzyme plus product where the product has got completely free. तो यहाँ पे ट्रांजिशनल स्टेट जो है वो देखने को मिलता है जिसका मतलब ये हुआ कि कई सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस होंगे। ये सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल स्टेज सिर्फ कौन सा है? ES कॉम्प्लेक्स, और जब प्रोडक्ट सेपरेट हो गया तो इसे हम स्टेबल कहेंगे। उसके बीच में जितने भी स्टेजेस हैं वो सारे स्टेजेस जो है वो अनस्टेबल स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफिकली एक चीज रिप्रेजेंट करते हैं इन विच एट वन एंड वी मेंशन द पोटेंशियल एनर्जी। एक एंड पे हम on the y axis we consider potential energy and on the x axis we consider the rate of the reaction। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस ग्राफ से the graph of potential energy versus rate of reaction where we can see that this is the substrate, this is the product। okay, तो आप देख सकते हो कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जो है they both are at different energy levels। The substrate is found always at a higher energy level compared to the product। okay, the graph shows higher energy level of the substrate then the product से एनर्जी लेवल क्या है? हायर है। किसका? सबस्ट्रेट का। इसलिए ये रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ in absence of enzyme the activation or the amount of energy required is very high। in presence of the enzyme so energy or we can say activation energy with enzyme and this is the activation energy विदाउट एंजाइम। अब ये कहां से कैसे समझ में आएगा? हमेशा याद रखना कि जो सबस्ट्रेट है वो एक हायर एनर्जी लेवल पे है कंपेयर टू द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन में तो एनर्जी की जरूरत है ही नहीं। प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी की जरूरत किसमें है? एनर्जी की जरूरत यहाँ पे है टू फॉर्म दैट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब एंजाइम व्हेन कंबाइंस विद सबस्ट्रेट तो ये जो ES कॉम्प्लेक्स बनने वाला है
लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। पर आप देख सकते हो कि अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो ये ES कॉम्प्लेक्स कम एनर्जी में भी फॉर्म हो रहा है। पर अगर एंजाइम नहीं है और कोई दूसरा ट्रांजिएंट स्टेज बन रहा है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का, तो वहां पे एनर्जी की जरूरत ज्यादा है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड when the reaction occurs without energy. Less amount of energy is required when the reaction involves an enzyme. So what is enzyme doing? Enzyme is actually lowering down the energy requirement. एनर्जी रिक्वायरमेंट, कोई भी केमिकल रिएक्शन की हम हमारी बॉडी में बात कर लेते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन, हर एक रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत होती ही है, राइट? देयर आर मिलियंस ऑफ रिएक्शन गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, एवरी रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। तो एंजाइम का क्या यूज है यहाँ पे कि अगर कोई रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू complete the reaction is quite less in presence of enzyme. In absence of enzyme, the energy requirement is very high. क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ही नहीं। एनर्जी कब चाहिए? ट्रांजिएंट स्टेज बनाने के लिए। ट्रांजिएंट स्टेज वेदर कैटालाइज्ड रिएक्शन है या नॉन कैटालाइज्ड रिएक्शन है, दोनों में ट्रांजिएंट स्टेजेस, अनस्टेबल स्टेजेस बनते ही हैं। कभी भी ऐसी कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती कि एक ग्लूकोज में से डायरेक्टली स्टार्च में से डायरेक्टली ग्लूकोज बन गया, बीच में कुछ फॉर्म नहीं हुआ। नहीं, ग्लूकोज स्टार्च से लेके ग्लूकोज में भी ब्रेकडाउन के कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जो वन स्टेप में ब्रेक नहीं हो जाता। इट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स एज इट इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स बन रहे हैं वो स्टेजेस अनस्टेबल हैं। इन अनस्टेबल स्टेजेस को बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और उसी एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू just form the transient stages of a reaction is known as activation energy. Activation energy का पर्पस सिर्फ एंजाइम में क्या है कि एंजाइम्स इसी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर रहे हैं, और जब वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं मतलब हर एक रिएक्शन में जो एनर्जी यूज होने वाली है वो कम है, और कम एनर्जी यूज होगी तो ऑब्वियसली बहुत सारे रिएक्शन साथ में हो पाएंगे क्योंकि हर एक रिएक्शन में कम एनर्जी की जरूरत है। बट एंजाइम्स के बिना यही रिएक्शंस बहुत ही जल्दी नहीं हो पाएंगी क्योंकि उन रिएक्शंस का एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा होगा, राइट? दिस इज द एनर्जी लेवल। You can see that with the enzyme the energy level is less, without the enzyme the energy level is quite high. So function of enzymes is to lower down the activation energy. Activation energy is the energy which is required to complete the reaction, and here the energy is lowered down just due to the presence of the enzyme, and therefore enzymes are responsible for rapid rate of reaction because they are lowering down the energy requirement. जब एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चलेगा? रैपिडली बढ़ता रहेगा, right? So rate of reaction is going to happen very fast just due to presence of enzymes who are responsible for lowering down the activation energy. Now students, this is a conceptual topic, so I want you to go through your textbooks also for the same, and you will have to read and discuss or understand from your textbook also, and here I have written the main points of the topic. Again you can understand that हर एक जो एंजाइम है उसमें क्या होता है? एक्टिव साइट होता है जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता है। ये जो सबस्ट्रेट है दैट इज गोइंग टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह सकते हैं जहां पे सबस्ट्रेट चेंज होता है प्रोडक्ट में। द सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज
करने के लिए सबसे पहले इस सबस्ट्रेट को अटैच होना पड़ेगा टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, और जब सबस्ट्रेट एंजाइम से अटैच होता है तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक ट्रांजिशनल स्टेट है। यहाँ पे कई नए बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं और कई बॉन्ड्स ब्रेक भी होने वाले हैं। सो ब्रेकडाउन ऑफ सम बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सम न्यू बॉन्ड्स, चेंजेस आर गोइंग टू अकर। इंटरमीडिएट में जितने भी स्टेजेस आएंगे वो सारे ही स्टेजेस अनस्टेबल होंगे। Another important thing is that when we draw a graph of the potential energy on the y-axis versus rate of reaction on the x-axis, we see that substrate is always found at a higher energy level compared to the product. The formation of the product does not require energy, and therefore the reaction is an exothermic reaction. But whether a reaction is exothermic, endothermic or any type of reaction, substrate is always going to be at a higher energy level. Substrate is always going to be at a higher energy level. This substrate when combines with enzyme, this will form enzyme substrate complex. Here, in absence of enzyme, the amount of energy required for the formation of the transient stages is very high. Amount of energy required to form the transient stages is very high. In presence of enzyme, the amount of energy required to form S complex is very low, and therefore enzymes are responsible for lowering down the activation energy required to complete a reaction. So that is what is the basis of this topic, and in the next lecture we will further continue with the topic of enzymes. We will discuss about some nomenclature of enzymes, and we will also talk about the different classification of the enzymes.